Good morning, dear students. Today we are going to do lesson number 6, living and non-living things. By living things what we mean? जो living है, जिनके अंदर life है. We are living things because we have life. The things which do not have life are called non-living things. Living things can grow, move, breathe and reproduce. Human beings, animals and plants are living things. So living thing क्या होते हैं? उनके अंदर life होती है और जिनके अंदर लाइफ नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. और लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं? दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. रिप्रोड्यूस मीन्स दे कैन गिव बर्थ to new life. Human beings, animals and plants are all living things. So human beings हैं, plants हैं, animals हैं, ये living things हैं. Non-living things are things that do not have life, thus they are not alive. They cannot grow, move, breathe or reproduce as living things can do. Cars, buses, tables, chairs, rivers, hills, mountains, etc. are all non-living things. Some of the non-living things are made by man, such as houses, cars, buses, tables and chairs. These non-living things are called man-made things or artificial things. So non-living things क्या होती है? उनमें अंदर लाइफ नहीं होती. दे आर नॉट अलाइव. वो जिंदा नहीं होती, उनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती. ना वो ब्रीथ कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना ही ग्रो कर सकते हैं, ना ही किसी न्यू लाइफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं. मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. सो लिविंग बींग्स कर सकते हैं बट दे कैन नॉट डू एनी थिंग लाइक द लिविंग बींग्स. कार्स, बसेस, हिल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ये क्या है? दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन बनाता है उसको मैन मेड थिंग्स भी कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल्स क्या हैं उसके? हाउसेस, कार्स, बसेस, टेबल्स, चेयर्स. Some of the non-living things exist naturally, such as rivers, mountains and hills. They cannot be made by man. कुछ जो non-living things हैं वो naturally exist करती हैं, जैसे river, mountains या hills. उन्हें man नहीं बना सकता, वो nature ने बनाई है. Living things, human beings, animals and plants also exist naturally. जो living things हैं वो भी naturally exist करते हैं, मतलब वो भी nature ने बनाई है. The things that exist naturally and cannot be made by man are called natural things. जो naturally exist करती हैं, nature में पहले से ही हैं, जिनको man नहीं बना सकता, उनको क्या कहते हैं? natural things. और इसके examples क्या हैं? rivers, mountains, hills, stars, clouds, etc. So let's discuss the characteristics of living thing. Human beings, animals and plants are living things. They have some special characteristics which differentiate them from non-living things. So human beings, animals और plants जो हैं वो क्या हैं? living things. So उनमें कुछ special characteristics हैं जो living things में नहीं हो सकती और living thing और नॉन लिविंग थिंग को वो उन बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग क्या करती है? दे ब्रीथ. All living things breathe to live. Human beings, animals and plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. सारी की सारी living things जो होती हैं वो breathe करती हैं. So they take in oxygen and breathe out carbon dioxide. वो इनहेल क्या करती हैं? ऑक्सीजन. और एक्सेल मतलब सांस से बाहर जब निकालती हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड. बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते ना. सो मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. लिविंग थिंग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. ह्यूमन बींग्स and some animals breathe through lungs. Water animals like fish breathe through their gills, while frogs breathe through their moist skins. Birds breathe through their tiny holes on the beaks. Insects breathe through tiny pores on their body called spiracles. So जितनी भी living beings हैं वो अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं कि नोज़ से एयर ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और वो कहाँ प्रोसेस होती है? उनकी लंग्स में प्रोसेस होती है. सो दे ब्रीथ थ्रू दी लंग्स. कुछ जो वाटर एनिमल्स हैं जैसे फ़िश वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं.
फ्रॉग्स और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे स्किन्स जो होती है मॉइस्ट, उनकी गीली स्किन होती है जो, उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। और जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक पे, उनकी चोंच पे एक छोटा सा होल होता है। आपने भी देखा होगा, अगर बहुत ही पास से आपने कोई बर्ड देखी होगी तो सो वो उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो टाइनी पोर्स होते हैं, उनके बॉडी पे बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको स्पेरिकल्स बोलते हैं, उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं। ओके, नाउ लिविंग थिंग्स मूव मतलब इधर से उधर चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स कैन मूव विद देयर लेग्स। Fish move by swimming, butterfly, honeybees and birds move by flying. सभी जो लिविंग बींग्स हैं वो मूव करते हैं। ह्यूमन बींग्स अपनी लेग्स से मूव करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपनी लेग्स यूज़ करते हैं जब वो मूव करते हैं। फिशेस स्विम करती हैं और बटरफ्लाई एंड हनी बी और जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं, अपने विंग्स यूज़ करती हैं। प्लांट्स are living things but they cannot move from one place to another like human beings. तो plant भी living things होते हैं but they cannot move. But leaves or flowers of some plants show movement. For example, if we touch the leaves of touch me not plant, it closes its leaves quickly. Similarly, if an insect sits on the pitcher plant, it slips and get trapped inside the lid of the pitcher plants. Moves quickly to close the mouth. So the sunflower plant keeps moving its flower towards the direction of sun. So plants although एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट वो भी जैसे उनकी लीव्स होती हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, दे मूव समहाउ। लाइक टच मी नॉट मतलब जो छूने से एक पौधा होता है, छुई मुई शायद उसको बोलते हैं, टच मी नॉट इन इंग्लिश। तो उसको क्या करते हैं, जैसे ही उसकी लीव्स को टच करते हैं उसकी लीव्स जो होती है क्लोज़ हो जाती हैं। जैसे ही हम उसे छुएंगे उसकी लीव्स क्लोज़ हो जाएंगी। और एक पिक्चर प्लांट होता है, उसके लाइक दिस इज़ द पिक्चर प्लांट। जैसे ही पिक्चर प्लांट के ऊपर इंसेक्ट बैठता है वो उसके अंदर स्लिप हो जाता है और वो जल्दी से उसे बंद कर लेता है। सो इट इज़ अ कार्निवरस मतलब फ्लैश ईटिंग फ्लावर, मतलब वो उन्हें ट्रैप करके उन्हें खा लेता है। सो एंड सनफ्लावर यू ऑल नो, सूरजमुखी का जो फूल होता है वो क्या करता है, वो जिस डायरेक्शन में सन मूव करता है सन की डायरेक्शन में मूव करता है। लिविंग थिंग्स, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लिप।